Yesterday we studied that how trade take place or how we gain from trade when is based on the law of absolute advantage. And it was presented by Adam Smith, and according to the Smith, two countries will take part in trade only if both countries can gain from trade. Law of absolute advantage states that if a nation is more efficient than the other nation in the production of a commodity, then we will say that this nation has absolute advantage in the production of this commodity, and the other nation has absolute advantage in the production of other commodity. So a nation should specialize and export the commodity of its absolute advantage, and it should import the commodity of its absolute disadvantage. इसमें यूएसए और यूके की एग्जांपल थी कि अगर यूएसए 1 आवर में 6 बशला वीट प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि यूके सिर्फ 1 बशला वीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो यूके इज लेस एफिशिएंट एंड यूएस मोर एफिशिएंट. So wheat is the commodity of absolute advantage for United States, and US produce only 4 yard of cloth per hour, and UK produce 5 yard per hour. So UK is more efficient in the production of cloth. So it is the commodity of its absolute advantage. And after specializing in the commodity of their absolute advantage, US should export wheat and import cloth, and UK should export cloth and import wheat. And if they exchange 6 wheat for 6 cloth with each other, then gain of USA, you can consider that कि अगर यूएसए 6 wheat एक्सपोर्ट करता है, तो उसके बदले में उसे 6 क्लॉथ मिल रही है. लेकिन अगर वो ये 6 क्लॉथ जो उसने 1 घंटे में बनाए थे ना बनाता वीट, और उसकी जगह खुद 1 घंटे क्लॉथ बनाता, तो इट कैन प्रोड्यूस ओनली 4 क्लॉथ. So now exporting 6 wheat, which it is produced, which US produce in 1 hour, it gains 6 clothes. So its total gain from trade is 2 clothes. In the same way, we can calculate the gain from trade for the UK. And so it is the way we explain that how trade can be explained, which is based on the absolute advantage. And according to the Adam Smith, there should be there should be no interference of government. But at the end, we saw that the absolute advantage explains the trade, a small portion of trade which is only between the developed and developing countries. But there is a lot of trade which is between the developed countries, which we can explain with the help of law of comparative advantage. It was presented in 1817 by David Ricardo. He published his book, which is name was Principle of Political Economy and Taxation, in which he presented the law of comparative advantage. This is one of the most important and still unchallenged law of economics, which with many practical applications. अब लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज ये है कि अगर आपने पीछे लॉ ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज पढ़ा है कि जो कंट्री जिस चीज़ की प्रोडक्शन में एफिशिएंट है उसे वो स्पेशलाइज करके एक्सपोर्ट करनी चाहिए. अब क्वेश्चन ये है कि अगर एक कंट्री दुनिया हमारा assumption स्टिल वही है कि देयर आर ओनली टू कंट्रीज आर टू नेशन इन द वर्ल्ड एंड देयर आर ओनली टू कमोडिटीज इन द वर्ल्ड. कि अगर एक कंट्री जो सा वो दोनों कमोडिटीज की प्रोडक्शन में लेस एफिशिएंट हो, तो फिर क्या ट्रेड होगी या नहीं है, या फिर ट्रेड का होने का कोई फायदा है या नहीं. So we can explain this with the help of law of comparative advantage. According to the law of comparative advantage, if one nation is less efficient than the other nation in the production of both commodities, mean a nation has absolute disadvantage in the production of both commodities, then there is still a basis for mutually beneficial trade. कि अगर एक नेशन दूसरी नेशन की निस्बत दोनों कम्युनिटीज की प्रोडक्शन में लेस एफिशिएंट है, यानी कि उसे दोनों की प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है, फिर भी म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड हो सकती है. और इसका तरीका क्या होगा? द नेशन which has the absolute disadvantage in the production of the both communities, कि दोनों कम्युनिटी लेस एफिशिएंटली प्रोड्यूस करते हैं, तो उस नेशन को ये रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि कौन सी कम्युनिटी है जिसमें उसका एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज कम है. This will be the commodity of its comparative advantage, and import the commodity in which its absolute disadvantage is greater. This is the commodity of its comparative disadvantage. हम इसको डेफिनेशन को एक दफ़ा दोबारा देखेंगे, लेकिन एक दफ़ा हम इसको पहले न्यूमेरिकली देख लेते हैं कि ये होगा कैसे. नाउ हमने वो टेबल जो था तकरीबन ये सेम टेबल है, थोड़ा सा चेंज किया है कि नाउ इन 1 hour यूएस प्रोड्यूस 6 bushels of wheat and UK produce 1 bushel of wheat in 1 hour.
अब अगर सिर्फ वीट को देखें तो यूएसए हैज़ एब्सोल्यूट एडवांटेज एंड यूके हैज़ एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज. यूके इज लेस एफिशिएंट. But when we see cloth, so US produced 4 clothes in 1 hour, but now UK produce only 2 clothes. पिछली एग्जाम्पल में क्या था कि UK 5 था यहाँ पे कि यूके हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ. लेकिन अब हम देख रहे हैं कि यूएसए इज मोर एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ कमोडिटी एज कम्पेयर टू यूके. अब अगर यूनाइटेड स्टेट दोनों कमोडिटीज जो सी हैं वो ज़्यादा एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर रहे हैं एज कम्पेयर टू यूके, तो इसका मतलब है कि यूएसए का दोनों में एब्सोल्यूट एडवांटेज है. अब अगर सिर्फ एब्सोल्यूट एडवांटेज को सामने रखें तो ट्रेड इज नॉट पॉसिबल. लेकिन अब अगर लॉ ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज को देखें तो यूएस से 6 टाइम मोर प्रोडक्टिव इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट. मतलब अगर 1 घंटे में यूके 1 व्हीट बनाता है, एक 1 बशल ऑफ व्हीट, तो यूएस से 6 बशल ऑफ व्हीट बना रहा है. लेकिन अगर हम क्लॉथ को कंपेयर करें तो यूके 2 क्लॉथ प्रोड्यूस करता है 2 जॉब एंड यूएस 4 क्लॉथ, यानी कि डबल एफिशिएंट है. तो इसका मतलब ये है कि यूएसए का एब्सोल्यूट एडवांटेज वीट की प्रोडक्शन में ज़्यादा है. और अगर यूके तो ये इसके कंपैरेटिव एडवांटेज की कमोडिटी है. उसका एब्सोल्यूट एडवांटेज दोनों में है लेकिन कंपैरेटिव एडवांटेज वीट में ज़्यादा है. यूके का हम देखें तो दोनों में एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है, लेकिन वीट वो 6 टाइम लेस प्रोडक्टिव है, जबकि क्लॉथ की प्रोडक्शन में वो सिर्फ हाफ लेस प्रोडक्टिव है एज कम्पेयर टू यूएसए. ये दोनों में उसका एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है लेकिन उसके कंपैरेटिव एडवांटेज की कमोडिटी क्लॉथ है क्योंकि उसमें उसका एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज कम है, वीट में ज़्यादा है. जब आपने कंपैरेटिव एडवांटेज की कमोडिटी जो सी है वो चूज कर ली, तब इसका मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज यूएस शुड प्रोड्यूस specialize in the production of wheat and it should export wheat, while UK should produce and specialize the production of cloth and it should export cloth and it should import wheat. ये थी एक्सप्लेनेशन. इसको अब हम दोबारा डेफिनेशन देखते हैं कि according to the law of comparative advantage, if one nation is less efficient than the other nation in the production of both commodities, there is still a basis for mutually beneficial trade. The first nation should specialize in the production and export of commodity in which its absolute disadvantage is smaller. यूके का एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज किस चीज़ में स्मॉलर है? क्लॉथ की प्रोडक्शन में. सो इसे क्लॉथ की प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए और ये एक्सपोर्ट करना चाहिए. एंड इट शुड इम्पोर्ट द कमोडिटी इन विच इट्स एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज इज ग्रेटर. हमारी एग्जाम्पल में वो क्या कमोडिटी थी? वो यूके के लिए वेट थी. अब हमने ये प्रूव करना है कि इससे अगर दोनों नेशन जो होती हैं वो अपने अपने कंपैरेटिव एडवांटेज की कम्युनिटी में स्पेशलाइज करके एक्सपोर्ट करती हैं तो इससे उनको बेनिफिट कैसे होगा या गेन्स फ्रॉम ट्रेड कैसे कैसे होंगे. नोट, मतलब हमारा जो assumption किया है देयर आर ओनली 2 nations and 2 communities in the world. So in the world of 2 nations and the 2 community, when it is determined that one nation has comparative advantage in one community, then the other nation must have a comparative advantage in the other community. यहाँ पे अगर 3 communities होती है, 3 nations होती है, फिर हमें थोड़ा सा इस पे टाइम लगता है. लेकिन अगर ओनली 2 nations 2 कम्युनिटी हैं तो अगर एक नेशन की कंपैरेटिव एडवांटेज की कम्युनिटी हमें पता चल गई है वीट है, तो कंफर्म बात है कि दूसरी नेशन की कंपैरेटिव एडवांटेज की कम्युनिटी क्लॉथ होगी. नाउ इन दिस केस म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड कैसे होगी कि अब यूएस विल प्रोड्यूस ओनली वीट एंड यूके विल प्रोड्यूस ओनली क्लॉथ. आफ्टर प्रोड्यूसिंग दिस अमाउंट दे विल एक्सचेंज विद वन अनदर 6 wheat फॉर 6 clothes. हम आप आपस में उनका एक्सचेंज रेट वही रखते हैं जो कि हमने पहले रखा था. अब ये अगेन हम इस टेबल को देखते हैं कि यूएस से एक्सपोर्ट 6 wheat और उसके बदले में वो 6 क्लॉथ देता है. तो 6 wheat इज इक्वल टू 1 hour फॉर द यूएसए एंड इन दिस 1 hour this nation can produce only 4 clothes for itself, but with the trade now it can gain 6 clothes for 6 wheat which is equal to 1 hour. आपने कंपेयर करने के लिए दरमियान में टाइम हमेशा चेक करना है. यूके का क्या है कि यूके 6 क्लॉथ एक्सपोर्ट करता है और उसके बदले में उसको 6 वीट मिलते हैं. 6 वीट यूके के लिए किस चीज़ के इक्वल है? 1 घंटे में वो 1 बशरा वीट प्रोड्यूस करते हैं. 6 वीट इज इक्वल टू 6 आवर्स, 6 घंटों के बराबर. 6 घंटे में यूके क्लॉथ कितना प्रोड्यूस करता है? 1 घंटे में 2 क्लॉथेस, 6 घंटे में 12 क्लॉथेस. अब अगर वो 12 क्लॉथेस में से 6 एक्सपोर्ट करके उसके बदले में 6 वीट ले लेता है तो इसका मतलब 6 क्लॉथेस स्टिल उसका गेन है, क्योंकि अदरवाइज उसको वो सारे के सारे 6 घंटे अगर वीट पे लगा के वो 6 वीट प्रोड्यूस करता
तो उसके बदले में उसको 12 क्लॉजेस छोड़ने पड़ते हैं। इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कास्ट, कि आप देखेंगे आपकी डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या है, उसके बदले में आप इंटरनेशनल लेवल पे क्या गेन कर रहे हैं। तो 6 वीट और 6 क्लॉजेस अगर आप उसमें एक्सचेंज करें और उस टाइम को कंपेयर किया जाए कि आप डोमेस्टिकली क्या प्रोड्यूस करते थे, तो 2 क्लॉजेस गेन है किसका, यूएस का, और 12 है उसका यूके का। ये एक रेंज थी जो हमने खुद डिसाइड की कि अगर 6 क्लॉजेस और 6 वीट आपस में एक्सचेंज किए जाएं दोनों नेशंस को क्या गेन होगा। लेकिन ये कोई सिर्फ एक्सचेंज रेट एक नहीं है, इसके अलावा भी डिफरेंट अमाउंट हो सकती हैं जो आपस में दोनों नेशन डिसाइड करती हैं। उसकी एक रेंज है कि हम कितने क्लॉजेस के बदले कितने वीट लेंगे। और वो रेंज किस तरह से डिसाइड होगी कि अगर यूएस 6 वीट को एक्सपोर्ट कर रहा है और उसके बदले में आप उसे सिर्फ 4 क्लॉजेस देते हैं, तो उस टाइम पीरियड में 4 क्लॉजेस तो खुद डोमेस्टिकली भी प्रोड्यूस कर सकता है। सो अगर आप 4 क्लॉजेस से कम देंगे 6 वीट के बदले, तो यूएस ट्रेड नहीं करेगा क्योंकि उसे इसमें फायदा नहीं है। जबकि यूके ने 6 वीट इंपोर्ट करने हैं, तो उसके बदले में 6 घंटों में वो खुद 12 क्लॉज प्रोड्यूस करते हैं। अगर आप उसे ये कहें कि आप 6 वीट के बदले में यूके को 12 क्लॉजेस जो से वो देने पड़ेंगे, तो यूके ट्रेड नहीं करेगा क्योंकि 12 क्लॉजेस तो उस टाइम पीरियड में डोमेस्टिकली भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो हमारी म्यूचुअली बेनिफिशियल जो ट्रेड है उसकी रेंज क्या होगी कि 6 वीट की जो वैल्यू है इंटरनेशनल लेवल पे, इट शुड बी मोर देन 4 क्लॉजेस एंड इट शुड बी लेस देन 12 क्लॉजेस। इस के दरमियान जो भी रेंज डिसाइड होगी उस पर दोनों नेशन जो सी हैं उनकी आपस में ट्रेड जो सी है बेनिफिशियल होगी, उनका गेन कम या ज़्यादा हो सकता है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल 6 वीट इज इक्वल टू 8 क्लॉजेज हो तो दोनों नेशंस को फिर भी इसमें फायदा होगा। यहाँ पे ये गिवन है कि कितना होगा, ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यू कैन सी दैट now there is only one situation in which trade is not possible, and that is the case of no comparative advantage. It is there is one which is not very common case where there is no comparative advantage. This occurs when the absolute disadvantage that one nation has with respect to another nation is the same in both communities. लेकिन इसमें ये है कि even if one nation has an absolute disadvantage with respect to the other nation in the production of both commodities, there is still a basis for mutually beneficial trade, unless the absolute disadvantage that one nation has with respect to the other nation is the same proportion for the both communities. ये एक सिचुएशन है, सिर्फ ओनली दिस सिचुएशन, कि अगर आपका एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज इक्वल है दोनों कमोडिटीज के लिए, तो फिर कंपैरेटिव एडवांटेज आप डिसाइड ही नहीं कर पाते और ट्रेड होगी नहीं। वो किस तरह से कि अगर यहाँ पे 4 और 2 है यानी कि हाफ की रेशियो है, तो यहाँ पे 6 और इधर यहाँ 1 के बजाय 3 होता, तो दोनों गुड्स की प्रोडक्शन में यूके हाफ प्रोडक्टिव है, यूएसए प्रोडक्टिव। In this situation, there is no comparative advantage and there is no possible trade between two countries. But in the real world, this situation is very rare. So we say that law is still valid. Trade based on comparative advantage. According to the law of comparative advantage, if one nation is less efficient than the other nation in production of both commodities, then there is still a basis for mutually beneficial trade. The original idea of comparative advantage was based on the labor theory of value. The value or the price of a commodity depends exclusively on the amount of the labor used to produce it. And we also use opportunity cost theory to explain the comparative advantage. The opportunity cost of a good is the amount of a stacking good that must be given up to lease just enough resources to produce one additional unit of first commodity. इसमें फॉर एग्जांपल में यूके हैज एन एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज इन बोथ गुड्स। यूएस since UK labor is half as productive in cloth but 6 times less productive in the production of the wheat as compared to the US. So the UK has a comparative advantage in cloth. US has a comparative advantage in wheat. Both countries can gain from trade. The US will gain from trade as long as 6 wheat is traded for more than 4 क्लॉजेस, क्योंकि 4 क्लॉजेस टाइम पीरियड में वो डोमेस्टिकली भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो यूके गेन्स as long as
Two clothes are traded for more than 2 wheat. Wages, thus the range of the mutually beneficial trade is 6 wheat on international level should be exported for more than 4 clothes and less than 12 clothes. Comparative advantage with money, ये हमने आज नहीं स्टार्ट किया. Any question?